Hello, dear students. I welcome you to today's class. How are you all doing? I hope you all are fine. Yes, very energetic. Lot of energy we get from you. Yes, we draw a lot of energy from the students. Your energy gives us energy to be vibrant and to be always interacting with you. And I hope to see you all soon. In the school, the kind of environment that we are facing these days, school is because of the students. We understood this thing now. आपकी शैतानियाँ, आपकी बदमाशियाँ, your we are even missing your naughtiness. आप जो बदमाशियाँ करते हो, जो शैतानियाँ करते हो, जिसके लिए कि हम आपको डांटते रहते हैं, हम वो भी मिस कर रहे हैं. When you all will be back and then we all will be scolding you do some mischief. That is also part of school. Anyways, it was just coming to my mind. I was feeling a bit nostalgic. That's why I shared it with you. So, we are completing this chapter today. काफी दिन से हम ये chapter कर रहे हैं. We have been doing this chapter since long. Poverty as a challenge, chapter 3, economics. Now, children, as we have discussed here today, brief recap I will be doing with this chapter, because in the second half of the video I'll be discussing the question and answers. Got it? So that is also very important. We need to discuss the question and answers also. तो वो हम discuss करेंगे, but before that we will be talking about, let's complete the chapter first. After that we will be doing a brief recapitulation. So this is today what we are going to talk about is the challenges ahead. Okay. Poverty हटाना है कि नहीं? Yes, we need to remove poverty. We cannot stay with poverty all through our lives, and we cannot let poverty rule over us in India. We need to eradicate poverty. इसको हटाना है हमको. लेकिन government programs are there, our initiatives are there, employment opportunities be there, agricultural reforms and institutional changes, all these things are there. ये सारी चीजें हैं, but still there are certain challenges that we are facing on a daily basis. तो it has declined. Poverty देखो कम तो हो रही है, कम से कम at least we are not getting the news. पहले तो news used to come कि भूख से मर गए लोग. People did not get food to eat, and some groups and some people have died, which is a very sorry state. बहुत ही दुख की और शर्म की बात है that because of poverty and because of the lack of food, some people have died. So we really and seriously need to control this situation. Okay. So all this progress is there. Poverty reduction, it is the India's most big challenge. Got it? We need to control this situation where we are unable to remove poverty. And the biggest thing is that there is wide disparities in poverty. Rural areas में, urban areas में, शहरों में, गांव में, and different states बहुत ज़्यादा disparity है. कहीं किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा गरीब हैं, कुछ स्टेट में गरीबी उतनी नहीं है. Some people are really well off. We cannot count them in the poverty group. तो carrying on with all these challenges, ये सारी चीजें साथ में लेके चलते हुए, we understand that some groups that are there are very vulnerable to poverty. कुछ groups हैं जिनका I won't say कुछ नहीं हो सकता, but then certain groups which are there, हमने पहले भी इसको discuss किया है, but here I feel it is necessary to mention that some groups are necessarily vulnerable groups.
वो गरीब ही रहते हैं, जितना कुछ भी कर दो। एक माइंड सेट ऐसा है, दे डोंट सेंड देयर चिल्ड्रन फॉर स्कूल्स। बॉयज को भेज देंगे फिर भी गर्ल्स को घर में रखेंगे। एजुकेशन का कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं है। इट इज द लैक ऑफ अवेयरनेस, it is the kind of life they are leading, they are unable to change. So mainly due to higher economic growth, increasing stress on universal free education, elementary education. देखो, poverty reduction हमको करना है, we can do it. तो कैसे करेंगे? How are we doing it? पहले तो we have to solve the problem of vulnerable groups. Another thing that we need to do is economic growth. इनकम लेवल बढ़ेगा लोगों का ना, when the economic growth is there, automatically conditions of the people will improve. Okay? तो इस चैलेंज को हमको किसी भी तरह से सॉल्व करना है, इस चीज को हमको देखना है। वी हैव टू सी दैट यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट ऑन दिस। ये इस पे अभी आई विल बी डिस्कसिंग 2-3 पॉइंट्स। फ्री एलिमेंटरी एजुकेशन, क्लासेस 1 to 5, लोअर क्लासेस, नर्सरी, केजी 1, 2, 3, 4, 5। व्हाट हैपन्स कि अगर ये इतना बच्चा पढ़ जाता है, एक छोटा सा बच्चा है, उसको आप स्कूल में दाखिल करा दीजिए, गेट दैट चाइल्ड एडमिशन इन द स्कूल, एलकेजी, यूकेजी, and then 1, 2, 3, 4, 5. When the child gets so much of education, after that 5th क्लास तक पढ़ाने के बाद आप उस बच्चे को कहो, ऐसा है ना, वो वहां पे साइट है, वहां चले जाओ और वहां पे जाके बोझा उठा लेना, जस्ट वहां कूड़ा उड़ा है उसको उठा के ले आओ। दैट चाइल्ड विल से, आई हैव स्टडीड, मैं 5 तक पढ़ चुका हूं, मैं ये काम नहीं करूंगा, आप मुझे आगे पढ़ाइए, मेरा एडमिशन 6 में कराइए। दैट इज द थिंग। एजुकेशन ब्रिंग्स अवेयरनेस एंड इट टेक्स यू फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। अंधकार से उजाले की ओर ले जाने का सबसे अच्छा तरीका है एजुकेशन। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू डू दिस फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, वी नीड टू गिव दिस। ये एजुकेशन जब बच्चों को मिलता है, देन चिल्ड्रन एंड देयर लाइव्स चेंजेस। ओके, then we have to see another thing, another challenge that we are facing is population growth. Population is growing on a very large scale. दिन पर दिन population बढ़ता ही जा रहा है, and we are unable to control that. China is at the topmost position. तो हमारे यहाँ पे भी कम नहीं है। With the increasing birth rate, controlling the population is a big challenge in front of the government. Another is that we need to do is empowerment of women. औरतों को हमको घर में ही नहीं रखना है। Empowering women. Women empowerment is very important because you know a child is born, और जिस माँ की गोद में वो है, ठीक है, the child who is there in the mother's lap, उसको सही तरीके से अगर माँ एजुकेट नहीं करेगी या माँ अगर उसकी देखभाल नहीं करेगी, देन यू अंडरस्टैंड व्हाट वुड बी द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड। तो एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, वी हैव टू सी दैट द कंडीशन ऑफ विमेन नीड्स टू इम्प्रूव, अलॉन्ग विद दैट गरीबों की भी हालत इंप्रूव करनी है। लेकिन अभी लेकिन इन टूडेज टाइम व्हेन वी से दैट द पीपल आर पॉवर्टी स्ट्रिकन, गरीबी बहुत ज्यादा है लोगों के अंदर। किस गरीबी की बात कर रहे हैं हम? वी आर टॉकिंग पॉवर्टी ऑन अ वेरी लिमिटेड लेवल, इन अ वेरी लिमिटेड पार्ट।
जिसमें पॉवर्टी मीन्स क्या है, मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल, बस खाना मिल जाए, खाना मिल जाए तो गरीबी दूर हो गई है, हम गरीब नहीं कहलाएंगे अगर खाना मिल गया है। व्हाई ओनली वी आर लिमिटिंग पॉवर्टी टू फूड? पॉवर्टी डजंट ओनली मीन फूड, पॉवर्टी हैज गॉट मेनी अदर डायमेंशंस एज वेल। हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, सारी चीजें पॉवर्टी में आती हैं। तो रीजनल खाली क्या है, सबसिस्टेंस लेवल, मिनिमम सबसिस्टेंस नहीं होना चाहिए कि हो खाना मिल गया गरीबी दूर हो गई। वी हैव टू सी रेस्पेक्टेबल लिविंग। और रेस्पेक्ट क्या चीज से मिलेगा कि आप बीमार पड़े हैं, आपको मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, बच्चे हुए हैं, बच्चों को खाली मजदूरों वाला काम नहीं करा के उनको आप स्कूल में भी भेज रहे हैं, गुड आइडिया। ओके, तो many scholars, many people say that we must broaden the concept of human poverty. हम जो गरीबी की बात करते हैं उसको थोड़ा सा बड़े लेवल पे समझने की जरूरत है। We need to understand it on a larger scale. बहुत सारे लोग हैं, they are able to feed themselves, खाने का इंतजाम तो कर लेते हैं, लेकिन वही बात है, do they have education? क्या उनके पास एजुकेशन फैसिलिटीज है? Do they have shelter? रहने के लिए जगह है क्या, रहने के लिए घर है? हेल्थ केयर इज देयर? मैंने कहा ना, बीमार पड़े, क्या आपके पास हेल्थ केयर है? और डू दे हैव अ जॉब सिक्योरिटी? काम करने जा रहे हैं, सुबह काम करने गए, शाम को मालिक ने कह दिया कल से मत आना, नो जॉब सिक्योरिटी ना। द पर्सन इज रेडी टू वर्क, देन दे डोंट हैव जॉब। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लड़की लड़के का भेदभाव, ऊंची जाति नीची जाति का भेदभाव, क्या हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं? Until and unless we control these things, until and unless we work on these things, we cannot define poverty. Poverty का सही explanation हम दे ही नहीं सकते हैं. We need to touch on these concepts just now that we were saying. Child labor is still there. How can child labor be practiced? एक बच्चे से काम कैसे करा सकते हैं? That is another aspect of poverty. वही बच्चे काम के लिए निकल रहे हैं जिनके माता पिता के पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है. The parents cannot send the child to the school. So तो वो that's why the parent has asked the child कि जाओ वहां पे जाके कूड़ा उठा लो या फिर ईंट ढोने का काम कर लो. तो that is there. All these aspects that we have discussed just now. पूरी दुनिया में when we see, worldwide experience when we see, it shows that development के साथ definition of poverty has also changed, and we need to understand कि ये poverty elevation programs and ये poverty को हम किस तरह से control करेंगे. Okay? So eradication of poverty, poverty को हटाना है, poverty को remove करना है. It is a moving target. हमेशा हमको देखना है, हमेशा हमको समझना है कि हाउ टू रिमूव दी पॉवर्टी. तो वी आर एबल टू प्रोवाइड मिनिमम नेसेसरी थिंग्स इन टर्म्स ऑफ ओनली इनकम ऑल पीपल बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट डेकेड. मतलब कि आने वाले 10-20 सालों में वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. along with that we need to understand health care, education, job, security for all these things, and achieving gender discrimination से ऊपर उठ के बात करना है. लड़के लड़कियों का भी भेदभाव बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ. We need to control that. बॉयज को ये काम करना है, गर्ल्स को ये काम नहीं करना है. Why these things? तो these are also tasks that are involved in poverty. और इन टास्क को हम कैसे पूरा करेंगे, हाउ आर वी गोइंग टू कंप्लीट दिस टास्क, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक पॉवर्टी इरेडिकेशन के बारे में हम खाली बातें कर सकते हैं, उसको सॉल्व नहीं कर सकते. गॉट इट चिल्ड्रन? सो हियर वी कंप्लीट अ बिग चैप्टर, पॉवर्टी एज अ चैलेंज. थर्ड चैप्टर, इकोनॉमिक्स, इज फिनिश्ड. आई मीन this year का syllabus is over.
रिवाइज सिलेबस एक बार फिर से देख लेना, जस्ट गो थ्रू द रिवाइज सिलेबस। एक और चैप्टर है फूड सिक्योरिटी, बट जहां तक मुझे याद है वो शायद नहीं आ रहा है, बट स्टिल जस्ट गो थ्रू इट। एंड in the online sessions you can discuss the questions related to poverty as this chapter. You're most welcome to do that. And now what is important is we need to discuss the question and answers. Got it, children? So with the discussion of the question and answers, this chapter would be completed. Okay, so let's discuss the question and answers. Dear students, as you all know, we have completed this chapter just now, poverty as a challenge. Now here I am with the question answers that is to be discussed. So kindly just concentrate on this question answers. We will be discussing these question answers right now. Poverty as a challenge. With the discussion of these question answers, children, this chapter would be completed. Got it? So let's start with the first question from the chapter. Describe how the poverty line is estimated in India. देखो, पॉवर्टी लाइन को हम किस तरह से मेजर करते हैं, हाउ डू वी मेजर दी पॉवर्टी लाइन, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहली चीज ये है दैट द पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर अगर इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल। मीन्स प्लीज अंडरस्टैंड दैट जो बंदा जितना कमा रहा है और जितना खर्चा कर रहा है, when the consumption and expenditure falls below a given minimum level, we have to understand कि minimum level क्या है, what is the minimum level, जहाँ पे कि the consumption is there, मतलब कितना उसको ज़रूरत है और कितना वो खर्च कर रहा है। okay, each country has an imaginary line, सभी countries का poverty measure करने का criterias अलग अलग है। and जो भी line that is drawn, the imaginary line that is there, where the people are unable to procure the money for carrying on their daily lives, then it is called as the below poverty line, and daily requirements are also not fulfilled. So it is accepted minimum social norm, which is to be strictly followed for the deciding the poverty line. Got it? तो पॉवर्टी लाइन जब हम इंडिया में डिसाइड करते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, वॉट ऑल थिंग्स डू वी सी व्हेन वी डिसाइड दी पॉवर्टी लाइन। सो फर्स्ट थिंग दैट वी सी इज मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, खाना मिलना चाहिए। इफ़ अगर बंदे को खाना मिल रहा है, इफ द पर्सन इज गेटिंग प्रॉपर फूड टू ईट, cloth to wear and footwear, fuel, light, educational and medical requirements, then these are determined for subsistence. Subsistence means to carry on the life. आपको ज़िंदगी चलाने के लिए इतनी चीज़ें ज़रूरी हैं। So these physical quantities, ये जो सारी चीज़ें हैं, these quantities are multiplied by their prices in rupees, and after that the poverty line is arrived at, the poverty line is estimated. So this number involved in the calculation, ये जो poverty line हम calculate करते हैं, when we calculate this poverty line, it varies. कहीं पे ज़्यादा है इनकम एंड कहीं पे कम है इनकम। तो इकोनॉमिक्स ऑफ लिविंग इन द इक्वल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, पूरी दुनिया में रहने के लिए जो एक लेवल है, one area, one level of carrying on the life that is there is for individuals living in the rural areas and individuals living in the urban area. देखो, पॉवर्टी हम जब गरीब कहते हैं तो गरीबी का एक्सप्लेनेशन शहर में अलग है और गांव में अलग है। Got it? So let's discuss the second question now. So let's discuss the second question, children. So अभी जैसे poverty estimation, this is a very good question. You know, children, do you think that present methodology of poverty estimation is appropriate? हम जो गरीबी नापते हैं, the way we measure the poverty levels of the people, तो इसमें
क्या आप इसको अप्रूव करोगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड अ मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल, मतलब खाली जिंदा रहने के लिए अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, इफ वी आर डूइंग समथिंग जस्ट फॉर लाइवलीहुड, तो पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ हिज और हर इनकम, जस्ट इनकम लेवल जितना वो कमा रहा है, एंड कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल। जितना भी दिया हुआ है, वॉट एवर इज मैंशनड, ओके, टू फुलफिल द बेसिक नीड्स, अगर वो पूरा नहीं हो रहा है, इफ इट इज नॉट कंप्लीटेड और इफ इट इज नॉट डन, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वी नीड टू ब्रिंग अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू ब्रिंग देम आउट ऑफ क्लचेस ऑफ पॉवर्टी। क्लचेस मतलब कि मतलब गरीबी में जो लोग जकड़े हुए हैं उनको बाहर निकालना है। अच्छा, गवर्नमेंट का क्या है? अपॉन द देखो, गवर्नमेंट हैज टू फोकस, बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो फोकस इट्स अटेंशन अपॉन द ब्रॉडर सेंस ऑफ पॉवर्टी। हम जो गरीबी की बात करते हैं, द सेंस, द पॉवर्टी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द पुअर पीपल हु आर देयर, उनका भी रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी तरह से हम मीट कर पा रहे हैं। और रिक्वायरमेंट्स में खाली खाना नहीं देखना है, वी डोंट हैव टू सी फूड ओनली। देखो हम और क्या क्या चीज़, यू विल टेल ना कि मैम खाली खाना नहीं देखेंगे, तो व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। तो we have to see a presence of other things like lack of access proper health care, sanitation, ठीक है, and caste and prejudice, job opportunities, बहुत सारी चीज़ें हैं which we need to complete to solve the problem of poverty। गरीबी को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें हमको कंसिडर करनी पड़ेंगी। गॉट इट? प्लीज अंडरस्टैंड। इसके बाद एक ईयर के हिसाब से वन क्वेश्चन इज गिवन हियर, डिस्क्राइब द पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया सिंस 1973 के बाद से क्या है। अब यहाँ आपको डेटा देना है, इट्स गिवन इन द बुक ओनली। पहला क्या है कि वी हैव फेस्ड अ डिक्लाइन इन द पॉवर्टी रेशियो। पहले क्या था, मतलब पॉवर्टी रेशियो काफ़ी कम हो गया है, 55% था इन 1973 में, नाउ 1993 में इट हैज़ कम टू 36%। इसके बाद फर्दर इट केम टू 26% इन 2000, मतलब गरीबी कम हो रही है, ऑल्दो इट इज़ इन अ वेरी स्लो पेस, बहुत धीरे धीरे हो रही है, लेकिन गरीबी खत्म हो रही है। गॉट इट? तो आजकल का जो मतलब लेटेस्ट एस्टिमेट्स है, अभी का जो हम अगर कैलकुलेशंस करेंगे तो वी फाइंड द नंबर ऑफ पुअर पीपल, अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इज देयर, 260 मिलियन तक हो गए हैं अब। तो मतलब काफ़ी गरीबी कम होती चली जा रही है। एंड गरीबी का एक्सप्लेनेशन अलग अलग है, रूरल एंड अर्बन पुअर, जो गांव में जो लोग रह रहे हैं और शहरों में जो लोग रह रहे हैं। पॉवर्टी ट्रेंड्स दैट आर देयर, इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इज लाइक, देखो ज़्यादा गरीबी हमको कहाँ पे, रूरल एरियाज में। अर्बन एरियाज में क्या होता है कि बिकॉज सम फैसिलिटीज, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आर अवेलेबल, तो लोग किसी ना किसी तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी के जगहों में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। Great number of people are there who are poor and who are residing in the villages। ठीक है, दूसरा जो चीज़ हमने कहा कि पॉवर्टी ट्रेंड्स हैव बीन डिक्लाइनिंग सिंस 1973, उसमें जो अगर हम गरीबी को ख़त्म करना चाह रहे हैं या गरीबी को कम करना चाह रहे हैं, द बिगेस्ट प्रॉब्लम वल्नरेबल ग्रुप्स। वल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट, सो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल फॉर द वल्नरेबल ग्रुप्स। Then one thing again that is important is the poor states। Poverty trends, जो हमारी गरीबी चलती आ रही है, उसमें we have been seeing कि there is a decline in poverty in every state। अर्ली 70s से हर एक स्टेट में गरीबी है, लेकिन कम होती जा रही है। 20 states and territories are there
नेशनल एवरेज, देखो ये कह रहे हैं कि यूनियन टेरिटरीज पॉवर्टी रेशियो इज लेस देन द national average of 26, means the union territories and the states are really working hard to eradicate poverty, गरीबी हटाने के लिए बहुत सारे काम, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीब जो हमको मिल रहे हैं that is in बिहार. Two of the poorest states, उड़ीसा एंड बिहार आर देयर. अभी यहाँ पे ये समझने की कोशिश करो, जैसे अभी आज की बताती हूँ, बाढ़ आई हुई है, big floods are there. तो ये जो बाढ़ आई हुई है, तो इस बाढ़ में आप सबसे ज़्यादा तबाही जो है बिहार और उड़ीसा में है. तो पॉवर्टी कैसे ठीक होगी? गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन दी पॉवर्टी, लेकिन गरीबी कहीं से भी कम थोड़ी हो रही है. जब गरीबी कम करने की बात करते हैं तब इस तरह के बिग नेचुरल कैलामिटीज आर द बिग फैक्टर फॉर पॉवर्टी. ये समझो, ये जो नेचर का डिजास्टर होता है ना, बहुत बड़ा कारण है पॉवर्टी का. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन डील्स विद दैट ओनली, मेजर रीजंस फॉर पॉवर्टी इन इंडिया. सबसे पहला जो हमको देना है रीजन, कॉलोनियल रूल. ब्रिटिश के टाइम में वी हैड लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत कम था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वॉज वेरी लेस एंड अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. देन द कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया. क्या ख़त्म किया? ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड डिस्करेज द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. दूसरा देखो, पहला तो है कि कॉलोनियल रूल. कॉलोनियल रूल ने क्या किया? हमारे यहाँ पे जितने भी लोग एम्प्लॉयड थे ना, दे बिकेम अनएम्प्लॉयड. द इंडस्ट्रीज दैट वेर देयर इन इंडिया वॉज टोटली फिनिश्ड by the Britishers. Then another important thing is low economic growth and high population growth. Economically we are not developing, लेकिन population is developing with a great scale. Okay, तो Indian administration's failure में क्या हुआ है? टू फ्रंट में. पहला तो है इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रमोशन, दूसरा है पॉपुलेशन कंट्रोल. Both these things have taken very high the cycle of poverty. गरीबी रेखा, गरीबी बहुत ऊपर तक चली गई है because of this tradition. Then rural poverty, the poor people who are there in the rural areas, गांव में जो poor people हैं, it is because of the low level of agriculture and rural development. Okay. Another important cause is the huge income inequalities. अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है. Huge income inequalities. Please mention about that. Then proper implementation of major policies. अभी हमने बहुत सारा बात किया ना, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना, स्वरोजगार योजना, अंत्योदय अन्न योजना. योजना तो हम बनाते हैं, बट देन द अनदर प्रॉब्लम दैट इज देयर इज कि योजना लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती है. वी मेक प्लान्स बट पीपल डोंट गेट दीज प्लान्स. ओके, वी टॉक्ड अबाउट द अर्बन पॉवर्टी, मेजर कॉज जॉब्स दैट आर देयर इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. बहुत सारे लोगों को उसमें clear cut, they are not getting, it has not to absorb the job seekers. मतलब काम ज़्यादा लोगों को चाहिए एंड काम देने वाले बहुत कम हैं. This is there. And another important cause is the socio-cultural factors. ठीक है, social and cultural factors that are there in India, it is also one of the major causes of poverty. कास्ट, जेंडर, औरतें हैं तो बिल्कुल दबा के रखना है, मर्द हैं तो बाहर जाके काम कर सकते हैं. all these causes are there which have led to human poverty on a okay. Then we have to understand which talking about social and economic groups which are most vulnerable. सबसे ज़्यादा जो गरीब रहते हैं, हमने बहुत इसके बारे में बात किया हुआ है चिल्ड्रन. We have talked about them: agricultural laborers, scheduled caste and tribe,
the rural laborers, okay, elderly people, female infants, ज़्यादातर गरीबी. If the family is poor, the family members who are maximum sufferers are the elderly people and the female infants. Got it? इसके बाद इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, कौन सा स्टेट गरीब है, कौन सा स्टेट अमीर है. यू कैन सी द डायग्राम दैट इज देयर, जो ग्राफ दिया हुआ है आपके बुक में, आप उसको देख के ये सारा कुछ आंसर कर सकते हो. इसके बाद ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड्स, पूरी दुनिया में जो गरीबी का एक रेखा बनी हुई है, हाउ डू वी दैट एंड वेयर डज इंडिया स्टैंड इन दिस, ये आपको बताना है, ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड्स. इसके बाद गवर्नमेंट प्रोग्राम्स ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन, गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, ये सारा आप अच्छे से देख रहे हो. इट इज़ क्लियरली मेंशन, हमने अभी डिस्कस किया है, अभी आई वॉज टेलिंग अबाउट इट. प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना. ठीक है, बहुत सारी योजना है. तो दीज योजना जो होती है, इट इज कॉल्ड एज स्कीम. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस गवर्नमेंट स्कीम्स. इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन पॉवर्टी एंड हु आर द पुअरेस्ट ऑफ पुअर एंड नेशनल रूरल, ये सारी चीज, कुछ आंसर्स, कुछ क्वेश्चंस तो आप बता सकते हो. इट इज देयर इन द बुक. एंड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, NRE, नरेगा जो है, महात्मा गांधी नरेगा, 100 days employment and initially 200 districts were covered in this. तो some basic concepts, some basic things are there जो कि आप आराम से describe कर सकते हो. Got it, children? So we have completed this chapter and we have also discussed the question and answers. Next we will be doing and we will be starting with another chapter. Till then, thank you so much and all the best to you.